force, isn't it? Yes or no? Have you put force or yes or no? But has the ball moved? Has the ball moved? Yes, no. No, ma'am. No. While you are reading, you are studying, you are not, मतलब you are reading. While you are reading even for 15 minutes, बहुत काम कर लिया मम्मा मैंने बहुत पढ़ लिया. That's what you say. What if I tell you you haven't done any work? Physics, according to physics, you have done zero work. Why? क्योंकि जो force आपने apply की, force you have applied has not moved the body. अभी आपने force apply की to move the wall, but has it moved? No. Please switch on your videos. I will not tell you again. I will simply take you out of the class. Everyone. Sparsh, you're not getting my warning or what? Rishi, Harsh, Desh, Ma'am, my video is on. Apoor. Okay. Sparsh video is not on. Sparsh is sleeping or someone. Chalo. Now I can see you. Now tell me that where was I? Okay. So the wall has not moved even when you press it very hard. Yeah? With all your might, with all your force. You can apply all your force, but the body has not moved. So we will write work. What is work? Work is said to be done. Please write with me. Only when force applied moves the body. Okay? Force applied moves the body. Please write. I hope everyone is writing it with me. And submit the copywork today. Because I'm going to call every one of you. Yes? Ma'am, did we do any numericals in the last chapter? Abeta, no. What? Yes, I have done. I have asked you to solve the examples and I have discussed a few. And so we had to do it in the notebook. Can you tell which one? Please, beta, be a paro. I will tell you over the phone. Because only you are interested, it seems. So why are you wasting the class time, isn't it? So how many pages should I leave? Don't leave any page. Just write what I'm writing. Excuse me, ma'am. Yes? Ma'am, the page is not clear. Ma'am, it is half. To everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yatharth, can you see what I have written? Work is said to be done only when force applied moves. It's visible to you. It might be you. Sachit is visible to you, right? No, ma'am. Yes or no? No, ma'am. बेटा ये तुम्हारा नेटवर्क इशू है ब्लड आ रही है क्या इमेज Ma'am, मुझे तो क्लियर दिख रही है. Ma'am, it is not blur, but the page is half. What page is half बेटा write what I have written पूरा पेज दिखाऊंगी तो it will be so tiny you will not be able to make out. What is half? You don't know chapter 4 is written. You can't make that out. And because you are not writing it with me, you have to write every word with me or the page will always be cut for you. Apoorv, you are sleeping. And your video is again off. For some reason. Ma'am, I don't have the pen stand. Sorry, ma'am. I don't have the phone stand. So what? Your video will be on. I want to see your fan. I don't care.
Keep your box, keep some stationery, make your phone in the stand form. Chalo, work is said to be done only when force applied moves the body, okay? No, please just adhere to what I'm teaching. No more rubbish. If you can't see and if it is blurred, I will send you the pictures. You know it. है ना? I'll send you the link, don't worry. Or you can make out from what I am speaking because I am speaking while I am writing. We only get one period a week, beta. You cannot waste. आपने पूरे मेरे 12 minutes waste कर दिए हैं. Work is said to be done only when force applied moves the body. So, when force applied, आपने force apply करी, but body rest पे ही है. Body rest की rest पे ही है, it's not moving. Then no work is done. ठीक है? Okay? Force applied and body rest भी नहीं करेंगे. हम कहेंगे do not move. Do not move. Then रेस्ट क्यों काटा मैंने? क्योंकि हो सकता है आप एक बॉल आ रही हो उसको रोकने में आप वर्क करो, है ना? तो भी वो मोशन में आप उसका मोशन चेंज कर रहे हो. देन ऑल्सो इट्स वर्क. तो वो थोड़ा सा आगे का पढ़ा दिया मैंने, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे. चलो, एवरीवन हैज रोड अ बाइसिकल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are applying the force on the pedals, yes, and you are ma'am. moving from one to another. That work is done. Drop one of your stationery on the floor, everyone. Drop one of the stationery on the floor, and then pick it up. Pick it up. When you are picking it up, you are moving the body, right? First you have worked from taking it from your table or your stationery box to the height, and then you are dropping. Then you are picking it up. So that is all work, okay? Because you are making the body move, okay? Okay. So I'll give you the examples, and you will tell me if the work is done or not, like Chidiya Ud, okay? Yes or no, you have to say. Playing football. Your audio is not on, Apoor. Ma'am, work is done. Audio on, everyone, please answer. Football, playing football. Work is done or not? Work is done. Yeah. Climbing the stairs. Work is done. Work Yes, ma'am. Pushing excavator. Pushing excavator at big machine. Work is not done. Work is not done. Okay. However force you may push, but that force applied will not make it motion. Will not change its motion. Okay. Agar it's moving, it will not stop because of you, and if it's stopped, you cannot make it move. Climbing the ladder. Work is done. Okay, because you are changing your position. You're putting in the force and you're changing in the position, right? Okay. Coolie, there's a coolie. Coolie in English is called porter. Okay, coolie in English is called Porter. 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 Coolie in English is called Porter. above red line, right? Everyone to write this. ये पोर्टर करके भी क्वेश्चन कैन कम. ओके, so अभी मैम व्हाट इज पोर्टर. Make it a habit to not ask any questions while exams. So what is porter? A coolie. So if there is a coolie who is just standing at his point, who is just Work is standing not at done. one point. Arey, let me finish my statement, Apoor. And he's carrying 10 kilo of your suitcases on his head. And he's picking it up and carrying it up on his head. Has he done one? Has he done any work? No work. Yes, it has. Apoor, always listen to the question. Do not answer in a haste. Because haste makes waste. आपने सुना नहीं मैंने क्या था. मैंने कहा पुली ने, आप तो बस पुली सुना तो पुली तो कभी कोई काम ही नहीं करता, बोल दिया. कुली ने
सामान उठाया. Puli has taken 10 kilos of his suitcases from the ground to his head. He has moved the suitcases. He has worked. But after taking the luggage on his head, he is standing still. He is not moving. So that means he is, at Not that done. time he is not working. जब वो लोड कैरी करके खड़ा है अपनी, he is not doing any work. When again he is moving from one point to another point, he is doing the work. है ना? ये बात सबको समझ में आई? When is the porter doing a work and when it is not? Yes, ma'am. Parth Verma wants to say something. I can't understand. What have you written, Verma? अच्छा. Porter is clear, right? Porter का समझ में आ गया आपको? अभी एक बात बताओ, मेरे को ये बताओ कि आपने एक क्या कहते हैं आटा सबने देखा होगा या नीड करा होगा खुद से या देखा होगा मम्मा या पापा को करते हुए आटा गूंथना. आटा आटा बेटा आटा गूंथना नहीं देखा किसी ने? मैम देखा मैम करा भी है. करा भी होगा, करना चाहिए. That's a lot of physics I am telling you. That's a lot of physics. I am telling you, making a chapati from the flour, from the gehu to the flour to the chapati from the tawa to your thali. So many physics, so much physics, and so many concepts of the physics are involved. That's a whole another session if I want to take. Chalo, after we finish the course, maybe then. So what happens? You're changing the shape of the atta to the dough. You're making it all move to come at one point in a dough. So what is that work or not? Yes, ma'am. It is a work. Okay, let me give you a delicious example. This is my breakfast. So tell me if I have done work or not. I've changed its shape. Ma'am, this is laddu. Arey, whatever is this, I have changed its shape. This is work or not? Yes, ma'am. Yes, I have ma'am. moved. I have moved. See, I have made it crack open and move. It's a choco fudge brownie cupcake. I have distorted because of you. Oh. So हमें समझ में आया for work to be done कि work हो इसके लिए two conditions are important. Two conditions. And please write it with me. Two conditions for work to be done. पहला भाई force तो लगाओ. Force should be applied. Force must act. है ना? Force to act होना चाहिए. और दूसरा क्या होना चाहिए? What is the second point? Ren, what is the second point? No one. Ma'am, please tell what you have written. Two conditions for work to be done. Okay, ma'am. Ma'am, first is force must act on the body and move it. वो तो मैंने बता ही दिया. It's written right And there. ma'am, force must act on the body and change its shape. Force must act on a body and change its shape. अरे नहीं भाई. Body must move. There should be a change in position of the body. Change in position of the body. The force must act and it should change the position of the body. Okay? अभी तो बताया body must move, तब भी नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग. तभी तो वर्क होगा जब फोर्स लगाओगे. फोर्स मस्ट एक्ट, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड. बिना फोर्स लगाए वर्क नहीं हो सकता, है ना? अब ये तो कंडीशंस हो गई.
अब इसके फैक्टर्स की क्या, फैक्टर्स भी यही है पर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। फैक्टर्स कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, फोर्स अप्लाइड। ओके, आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो ज्यादा वर्क होगा, आप कम फोर्स लगा रहे हो तो कम वर्क होगा, है ना। आप धीमे 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 एक ट्रॉली को, एवरीवन हैज शॉप्ड एट अ मार्ट और समथिंग, Yes, ma'am. आप धीमे धीमे उसे पुश कर रहे हो तो आप कम वर्क कर रहे हो, बिकॉज आप कम मोशन कर रहे हो। आप जल्दी जल्दी उसे उसको खेल बना लिया आपने, कार्ट रेसिंग करने लग गए आप वो मॉल में, है ना, तो आप ज्यादा वर्क कर रहे हो। तो ये वीडियो कैसे मैजिकली ऑफ हो जाती है तुम लोगों की? मैजिकल फोन पे मुझे भी तो, मेरी भी वीडियो ऑफ हो जाए तो तुरंत बोलोगे मैम दिख नहीं रहा है, ये नहीं है, वो नहीं। फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस मूव, इतना डिस्टेंस मूव किया उतना ज्यादा वर्क किया, ठीक है। अब आपने एक चीज मॉल में खरीदनी थी, यू वेंट इनटू द मॉल, यू परचेज वन सोप एंड यू केम बैक। फिर आपने पूरा घर का साल भर का सामान लाना है, चीनी 25 किलो है, आटा 25 किलो है, मतलब एक चीज भी नहीं, 50-100 थिंग्स लानी है, तो आपने उतना ही कार्ट को मूव कराओगे हर जगह पूरे मॉल Yes, में, ma'am. तो किसमें वर्क ज्यादा करोगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? B. Option B. बी। वाई? बिकॉज आपने डिस्टेंस ज्यादा मूव करा, फोर्स तो चलो आप उतना ही लगा रहे हो, आप उतने धीमे 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 चल रहे हो, कोई नहीं, बट डिस्टेंस आपने उसमें ज्यादा मूव किया तो फोर्स वर्क उसमें ज्यादा होगा। सो राइट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बताओ। आपको मैंने कहा कि एक वाटर बकेट है, आपको वो लेकर, और इमेजिन दैट यू आर इन द क्वाड्रेंगल ऑफ द स्कूल, थोड़ा स्कूल चलते हैं, वी आर मिसिंग द स्कूल, यस और नो? Yes, ma'am. तो आप क्वाड्रेंगल में हो, मैंने आपको एक बकेट वाटर दिया और बोला इसको लेके जाओ फर्स्ट फ्लोर में, एक चक्कर लगाओ वापस आ जाओ, ये बोला मैंने यथार्थ यादव को, और एक दूसरे बच्चे को मैंने स्पर्श को बोला कि जाओ ये दे, और एक बकेट मैंने बोला जाओ ये दे मैम को लेकर आओ। हु हैज वर्क मोर? Yatharth Yatharth Yadav. Yadav. आई, बिकॉज ही हैज डिस्टेंस उसने ज्यादा कवर किया, इजंट इट? Yes, ma'am. इजंट इट? अच्छा, फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं कुछ अच्छा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। एक पुष्पिता मैम को देकर आओ, एक प्रिंसिपल मैम को। वो हो गया, वो खत्म हो गया वहां पे स्टोरी। हाँ, फिर मैंने मृत्युंजय को बोला कि ये लो ये ग्लास ऑफ वाटर देकर आओ, ऑब्वियसली बकेट ऑफ वाटर क्यों दोगे देव मैम को? तो मैंने कहा देव मैम को ग्लास ऑफ वाटर देकर आओ, यथार्थ यादव को फिर कहा बकेट लेके जाओ और ये बकेट भी दे आओ देव मैम को, उनको कुछ जरूरत होगा वहां पर, कुछ करना होगा क्लीन, एक बकेट दे और एक वाटर भी दे आओ। अब दोनों लोग ने डिस्टेंस सेम मूव किया, ठीक है, बट हु हैज वर्कड मोर? Yatharth Yadav. बिकॉज उसने बकेट उठाने में ज्यादा फोर्स लगेगा और ग्लास उठाने में कम फोर्स लगेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, तो ma'am. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? अब हम आते हैं डेफिनेशन, समझ में आया डेफिनेशन, अब वर्क समझ में आ गया हमें क्या होता है बेसिक। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क मैथमेटिकली भी पढ़ेंगे और वर्ड वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी is equal to the product of the force applied and distance moved by the body in the direction of mathematical expression लिख के उसको word में लिखना है। Write with me, please write with me. Work done equals to force distance moved। और सिर्फ अब एक और नई चीज, डिस्टेंस मूव नहीं होना है, सिर्फ डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसका क्या मतलब है भाई? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ।
suppose you who will fight? Let us say Apurva is fighting. Desh, are you there? Desh? Yes, ma'am. Huh. Suppose you are fighting, you are The wrestling. right side page is not visible. Whose page? What page is not visible? Are you not listening to what I was speaking? What were you doing then? Distance moved in the direction. Distance moved in the direction of force. Yes, of force. Sorry. अच्छा ठीक है. Desh, are you there? Yes, ma'am. हाँ. So you are in a competition of wrestling with Richie. Okay. So who will move back? Who will move front? अगर आप उसको पीछे पुश करोगे तो वो पीछे हो जाएगा. हो जाएगा ना? नहीं होगा. Yes, ma'am. Yes or no? Okay. He's so sleepy. His voice is. Chalo. Then you are fighting with Hulk. What will happen? Can you push him back or he push you back? What will happen? And he will push. You back, right? Hello, Mrityunjay. This is happening to you. We are taking this volunteership from Desh. He's sleeping. Mrityunjay? Yes, ma'am. हाँ. So Richie. तो आपने पुश करा यानी कि आपने फोर्स भी लगाया एंड डिस्टेंस भी मूव हुआ. आपने पुश करा और आपके पुश के डायरेक्शन में ही रिची हैज गॉन बैक. यू आर पुशिंग एंड रिची हैज गॉन बैक. तो फोर्स भी अप्लाई किया और डिस्टेंस भी मूव करा रिची ने इन द डायरेक्शन. Ma'am, actually, ma'am, your voice is cracking. I can't To all? listen you. टू ऑल. Ma'am, no, ma'am. Ma'am, it's my network problem. नो वन. ओह अपूर्व. Yes, ma'am. चलो आप हो ठीक है. वी हैव टेकन हर देश एंड मृत्युंजय बोथ अवे. तो फोर्स भी लगी और रिची हैज मूव्ड इन द डायरेक्शन की ऑन योर पुश तो डायरेक्शन के फोर्स के डायरेक्शन में मोशन भी हो गया. ठीक है. तो वर्क डन आपने किया. बट व्हेन इफ यू आर फाइटिंग विद हल्क विल इट बी पॉसिबल? No, ma'am. व्हाट विल हैपन? हल्क आपके ऊपर वर्क करेगा. हल्क आपके ऊपर वर्क करेगा. यू विल गो बैक. है ना? आपके फोर्स के डायरेक्शन में वर्क नहीं हो रहा. हल्क के फोर्स के डायरेक्शन में वर्क हो रहा है. तो हल्क इज एक्टिंग ऑन यू. यू आर नॉट एक्टिंग ऑन द हल्क. Yes, ma'am. तो इफ यू वांट द वर्क टू बी डन बाय यू तो फोर्स आप जो लगा रहे हो और पता चला आप साइकिल चला रहे हो आगे जाने के लिए और आई हैव डन सम मैजिक एंड साइकिल इज गोइंग बैकवर्ड्स. Then what will happen? The cycle is working on you or you are working on the cycle? The cycle is working on me. हाँ, you are getting my point. So that is not work done by you. Work done by you तभी होगा जब आप वर्क कर रहे हो और आपके मन चाहे भाई जो फोर्स लगा रहे हो उस मन चाहे डायरेक्शन में वर्क हो तब तो वर्क डन हुआ आपके लिए. है ना? Yes, ma'am. ठीक है. अब इसका वर्ड फॉर्म कोई नहीं लिखेगा. एवरीवन हैज टू राइट इट लाइक दिस. The work and speak with me after me actually. The work done by a force The work done by a Work done by force force on a body on a on body a body is equal to is equals to equal to the product of the product product of of The product of force applied force force applied applied and the distance moved in the direction of force. and the distance And the moved in the distance- direction of force By the body. by the body. ये by the body हर जगह. Work done by a force. Work done by a force on a body is equal to the product of by the body moved in the direction of force by the body. In the body by the body मतलब हर समय आपको ये स्पेसिफाई करना है कि भाई वर्क डन हो रहा है बॉडी के ऊपर. फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर. डिस्टेंस मूव कर रहा है बॉडी. ये बॉडी वर्क डन बाय फोर्स. Ma'am, your Force voice is applied by- lagging. मैं जल्दी बोल रही हूँ क्या? No, ma'am, your voice is cracking. Work done by a force
equals to the product of force applied on the body and distance moved in the direction of force by the body. Okay? Yes, ma'am. ठीक, ये याद होना चाहिए. मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी बुकिश लैंग्वेज रटे. जब तक लॉज नहीं आते, वो भी 9 से आएंगे. लॉज को वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है, उसके अलावा याद मत करो. अंडरस्टैंड इट और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, बस. तो आप मुझे कोई इसमें से बता सकता है कि अगर D 0 होगा तो W भी 0 हो जाएगा, है ना भाई? अगर 4 0 हुआ तो भी वर्क 0 हो जाएगा. अगर डिस्टेंस मूव 0 हुआ तो भी 0 हो जाएगा. बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. 0. 0. Zero. अब इसके क्विकली हम लोग यूनिट्स देख लेते हैं. यूनिट्स ऑफ वर्क. व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन फोर्स? What is the unit of force? Newton. Okay. तो हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाई मानो. और what is the distance moved की यूनिट? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर. इसको बोलते हैं 1 जूल. कभी भी वर्क की यूनिट को न्यूटन मीटर नहीं लिखते हैं, नेवर. क्योंकि न्यूटन मीटर यूनिट होती है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की. ओके. यस मैम. ओके, कभी भी ये नहीं लिखते हैं, हमेशा जूल लिखते हैं. राइट? Yes, ma'am. ओके. अच्छा, किलो मीन्स 3 zeros. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 1 जूल इक्वल्स टू, अगर 1 किलो जूल है तो 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 100 जूल्स. राइट? Yes, ma'am. प्लीज राइट इट. अच्छा, बड़ी मजेदार बात बताते हैं. व्हाट इज एनर्जी? बताओ एनर्जी का कोई एक सेंटेंस बताओ तुम लोग. एनर्जी, आई हैव सो मच एनर्जी. ऐसे एनर्जी एवेंजर्स का बता दो. ही इज वेरी possessing so much energy or whatever, एनर्जी सोर्स या कुछ भी. मेक अ सिंपल सेंटेंस ऑफ एनर्जी. बेटा मेक सेंटेंस ऑफ एनर्जी. मेक सेंटेंसेस नहीं करते हो. I don't have enough energy left to do such a complex task. थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस बना लो बेटा. Great energy is required, like larger amount of energy is required to do such complex task. तुम फिजिक्स क्यों घुसा रहे हो? नॉर्मल चीजों में बोलो कि मूविंग दिस स्टोन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. It takes a lot of energy to jump from this place to this place. It takes a lot of energy to ride from school to home. नॉर्मल अपने डेज में बताओ कहाँ एनर्जी लगती है? एनर्जी नहीं लगाते हो क्या किसी चीज में? फूड गिव्स अस एनर्जी. एनर्जी की सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो. Food gives us energy. तो फिर photosynthesis give energy, converts light energy to chemical energy, which makes our food. So basically, बड़े ध्यान से सुनो. This is capacity to do work. Sorry, to do work. मतलब कि एक तो हो गया कि आपने वर्क किया मतलब आपने कुछ मूव किया, फोर्स अप्लाई किया एंड यू मूव बॉडी, आपने वर्क किया. गुड, वेरी गुड. पर एक हो गया कि आप काम कितना कर सकते हो, आपके पास कितनी एनर्जी है. जैसे कि यथार्थ में सबसे पहला सेंटेंस, मेरे पास तो अब एनर्जी नहीं है. आई डोंट हैव इनफ एनर्जी टू डू एनीथिंग. सो अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है काम करने की. एनर्जी नहीं है का क्या मतलब है?
कैपेसिटी खत्म हो गई। कैपेसिटी नहीं है अब काम करने की। एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपने काम कर ही लिया, आप पहले से भी बता सकते हो या पास्ट टेंस में भी बता सकते हो कि इतना काम हुआ, ठीक है। वो कैपेसिटी कितनी थी काम करने की और कितना हुआ, जो काम किया कर लिया वो वर्क डन है, जो हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस, समझ रहे हो। Yes, और ma'am. कितना काम आप कर सकते हो, आपके अंदर कितनी काबिलियत है वो काम करने की। काबिलियत का मतलब टैलेंट नहीं है यहाँ से, प्योर शेयर एनर्जी। One roti will give you this much energy, 2 chapatis will give you this much energy, and if you eat rice also, you'll go to sleep. It was a joke, you can laugh. तो अच्छा, वर्क और एनर्जी में काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि इसकी यूनिट भी जूल ही होती है और इसके फॉर्मूले भी इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इतना हमें हमेशा ध्यान रखना है। व्हाट इज एनर्जी? Capacity to do work. अच्छा, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी पोजेस करता है एवेंजर वर्ल्ड में, एवेंजर्स में, फाइनल एंड गेम में? और ठीक, Captain. कैप्टन व्हाट? देयर आर 2 कैप्टन्स। Captain America. नो Marvel. Thanos. नो 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 नो, अगर इतनी एनर्जी होती थी व्हाई वुड हैव Hulk. कैप्टन मार्वल, बिकॉज कैप्टन मार्वल इज मेड ऑफ एनर्जी, शी इज sheer एनर्जी, शी इज लाइफ फॉर्म Yes, ऑफ ma'am. एनर्जी। ये किसी ने नोटिस ही नहीं किया, कैसे देखते हो तुम लोग? हाउ डू यू वॉच द Lightning मूवी? in- लाइटनिंग नहीं है, दैट इज एनर्जी, प्योर एनर्जी, लाइक सन। शी इज अ मिनी सन, शी इज क्रिएटिंग हर ओन एनर्जी। अरे ये बात समझ में? Ma'am, but she got the powers from a lightning engine. From अरे बट अभी तो वो energy ना कहीं से मिले, अब सन को भी कहीं से पावर मिली ही होगी, कहीं से हाइड्रोजन हीलियम मिले ही होंगे। nuclear fission. Getting my point? What I'm Yes. telling you is that, ठीक है, Yes, enough of Avengers, बात समझ में आई? Yes, ma'am. मतलब Yes, ma'am. he has the most capacity. The firing stopped and aimed to the sky. क्यों ऐसा क्यों हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए, बताओ भाई। मैम क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में घुस गई थी। तो उसको कैसे पता चला, उसकी मशीन को कैसे पता चला, उसकी वो एलियन स्पेसशिप को कैसे पता चला था उसकी? हाउ डज इट नो? मैम क्योंकि वो एनर्जी सोर्स पे एम करता है। हाँ, एनर्जी आ रही होगी। वो जो कलेक्टिव नीचे एनर्जी थी, जो नीचे एनर्जी थी, उसकी जो एलियन स्पेसशिप थी थैनोस की, उसने ये रीड करा तो उससे बड़ी एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। किसी ने कहा नहीं कि चेंज द डायरेक्शन, उसकी जो मशीन थी, जो एलियन स्पेसशिप की मशीन थी, वो इस तरीके से डिजाइन थी कि जहां पर एनर्जी सोर्स ज्यादा हो वहां पर यू हैव टू फायर। एक ही जगह पे फायर नहीं करना था, एक ही जगह पे फायर हो भी नहीं रहा था, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। वो इसी तरह से प्रोग्राम की, जो एलियन स्पेसशिप वाज फायरिंग डाउन जब थैनोस हारने लगता है स्कारलेट विच से। हाँ, तो कहता नहीं है, तो उसकी जो मशीन थी वो इसी तरीके से प्रोग्राम थी कि वो जो है फायर करेगा एनर्जी सोर्सेस पे। तो वो तो कलेक्टिव एनर्जी सोर्स है, ज्यादा कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी थी, दैट्स व्हाई कंसंट्रेटेड एनर्जी, दैट इज व्हाई उसकी मशीन मूव कर गई ऊपर, because she has the most capacity to do any work, in their case any harm। आई बात समझ में? ओके। और दूसरी बात, ये भी बहुत उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, इसका मतलब थैनोस, देखना अभी जाके फिर देखना, थैनोस was beating her and she didn't even flinch। यस मैम, पर उसको पावर स्टोन निकालना है, ये सब मैंने नोटिस किया था। He is pure energy, how can you kill energy? You can beat Yes, energy to with energy, with power only ना, एनर्जी को Yes, तो एनर्जी ma'am. से ही कॉम्बैट करना, ठीक है, ठीक ना। बहुत बातें हो गई। अब 2 टाइप की एनर्जी होती है भाई, फटाफट, टाइप्स ऑफ एनर्जी और काइंड्स ऑफ एनर्जी। बेसिक, जो बेसिक होती हैं, अभी हम लोग बहुत सारी पढ़ेंगे, बट द बेसिक आर, इसको काइनेटिक एनर्जी, प्लीज राइट विद मी,
and potential energy. And I'm going to call many students today. So if your work is not complete, you have not given video assignments, I'm going to give a full report also to your parents. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन करके बनता है मैकेनिकल energy. ओके अच्छा दिस पेन इज केप्ट राइट हियर मैंने इसको उठा के रखा ना अभी आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड लैंडेड हियर Yes, ma'am. यस अभी अगर मैं इसको इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है जो मैंने इसको काम करके दी मैंने काम करा ना मैंने उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा तो आई गिवन इट सम एनर्जी अभी मैंने इसको मोशन में करा सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी अब इसको यहाँ पे ही लिखो राइट लाइक आई एम राइटिंग वर्च्यू ऑफ मोशन virtue of rest virtue of motion virtue virtue of rest अरे ये तो ब्लर क्यों हो गया ठीक है अरे ओके अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं पानी की टंकी सबके एरिया में होगी ना जो बड़ी बड़ी पानी की टंकियां होती हैं वाटर टैंक Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाटर टैंक Yes, ma'am. हाँ हाँ मैंने सुन लिया According to Wikipedia, a water tank is a container for storing water. तो अब ये बताओ कि वो तो बहुत हाइट पे होती है ना वो तो बहुत हाइट पर होती है isn't it yes or no yes or no Yes, मतलब ma'am. पानी की टंकी Yes, पानी ma'am. नहीं, जो होती है जो एरिया में होती है सीमेंट की बनी हुई होती है बड़ी सी एड्रेस ma'am. बताने के लिए यूज करते हैं पानी की टंकी के पास वो वाली ये वाली पानी की टंकी देता हूँ ओके सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये अब ये पानी की टंकी अरे ये वाली पानी की टंकी आई स्पेसिफिकली फाउंड आउट दिस वीडियो फॉर यू पीपल ध्यान से देखो ये वाली पानी की टंकी अब इसमें पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता होगा अपने आप से तो आएगा नहीं बारिश का पानी तो कलेक्ट करता नहीं है Yes, ma'am. तो पहले तो हमने इस पानी के ऊपर वर्क किया और उसको उठा के पानी को पूरा ऊपर जाके रख दिया पानी की टंकी में ठीक है Yes, ma'am. अब पानी की टंकी में रख दिया तो हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वाटर को दे दी अब जो वाटर एट अ हाइट है इट इज पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी जो वर्क हमने किया था पानी के ऊपर उसको ऊपर ले जाने के लिए वो वर्क पानी ने स्टोर कर लिया और उसको काइनेटिक एनर्जी की तरह पोटेंशियल एनर्जी की तरह अब वो पानी रेस्ट पे है उसको सेव कर लिया अब देखो इट्स फॉलिंग डाउन देखो कितना सारा पानी आ रहा है ये पानी इतनी एनर्जी से क्यों आ रहा है जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी. ये पानी इतनी हाइट से इतनी एनर्जी से आ रहा है सोचो तुम यहाँ खड़े होगे तो तुम्हें चोट लगेगी कि नहीं लगेगी Yes, ma'am. Ma'am, it is not visible. हाँ ये सुनो Yes, ma'am. क्यों बताओ मैम क्योंकि एनर्जी Because बहुत ज्यादा है. पहले आपने वाटर को टैंक में पहुंचाया ठीक है ये हैव वर्कड ऑन इट विद अ मोटर और टैंक में वाटर के पास क्या हुई पीई पोटेंशियल एनर्जी. पी अब लेकिन जब वो गिरी पानी की टंकी गिरी तो पानी मोशन में आया Yes, ma'am. P is converted into Ke. हाँ पीई इज कन्वर्टेड इनटू के
मैम फैक्टर होता है के का। क्या? मैम जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ओ यस इसलिए अभी आगे ना बढ़े, जो बता रहे हैं वो समझे। ठीक है, अब मूविंग बॉडीज के एग्जांपल दो मुझे। मूविंग कार, throwing a ball, bow and arrow, pendulum swinging, moving arms of a clock. Look at the clock, everyone. Look at the clock. Seconds arms, hours arms, and minute arm is moving or not? यस मैम। And everyone is doing the work. By the word, but इसके पास कौन सी एनर्जी है? मोशन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी, रेस्ट पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कौन सी एनर्जी है बताओ? हैंड्स के पास, क्लॉक हैंड्स के पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात आ गई समझ में। फिर आया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, भाई आपने कोई चीज कहीं है तो यानी कि उसको किसी ने ला के वहां रखा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो वो चीज आई। तो वो जो वर्क किया गया उस चीज के ऊपर, वो उसको स्टोर कर लेती है और वो बन जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी कन्वर्ट होता है जब वो मोशन में आती है। ये बात आई समझ में? और ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो। ये पेन मैंने उठाया, यहाँ रख दिया। अब इसके पास अब ये इतनी हाइट पर है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट पे है, तो इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये फॉल करेगा, देखो मैंने इसको फॉल करा दिया, तो अब देखो ये जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, इट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी। साउंड आई थी नहीं आई थी सबको? यस मैम। साउंड एनर्जी, कुछ ना कुछ हीट भी क्रिएट हुई होगी, हीट एनर्जी। ये रुक गया, जंप नहीं करा, तो फ्रिक्शन भी लगा होगा कुछ ना कुछ, राइट? दैट इज फ्रिक्शनल एनर्जी एज वेल। चलो ये बात आई समझ में। तो जब हम ग्रेविटी को भी ले रहे हैं अकाउंट में, तब उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया से एग्जांपल देती हूँ मैं। जिसके पास भी ऐसा वाला पेन हो वो खोल सकता है। ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को मैंने प्रेस कर दिया है, इट्स विजिबल। अब मैं इसको रिलीज करूंगी तो क्या होगा? अभी इसको मैंने क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी। अभी स्प्रिंग के पास क्या है? अभी स्प्रिंग के पास क्या है? पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको मूव करा तो देखो मूव कर दी। मैंने अपना हैंड हटाया तो एक जंप्ड। तो अब वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। यस मैम। ऐसे ही। अच्छा, तुम लोगों ने कोई वो वाली शैतानी करी है? मैंने तो बहुत करी है। मैं रिक्शे से जाती थी और रबर बैंड से कैटापुल्ट बनाते थे, रबर बैंड से पेपर फोल्ड करके मारने वाला। करा है किसी ने? मैंने बहुत करा है। हम लोग पूरे रिक्शे के बच्चे बहुत शैतान थे। तब तो रिक्शे ही चलते थे, स्कूल पास होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो बना लेते थे छोटी छोटी चिट्स रोल करके, और वो जिस पीछे बैठ जाते थे, पीछे वाले बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं हमेशा। तो और जो भी बंदा हेलमेट पहन कर आ रहा है उसके हेलमेट पे तड़ तड़ तड़। मैं ये नहीं कह रही तुम लोग करो, आई एम टेलिंग यू कि जब मैंने उसको पीछे पुल किया तो आई एम गिविंग इट पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैंने उसे रिलीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। ये मुझे वीडियो बना के सब लोग देंगे आज, ठीक है। एक इलास्टिक बैंड लो, पेपर को फोल्ड करो, आपके वो तैयार हो जाएंगे। वो उससे लगती नहीं थी, बट इंसान इरिटेट हो जाता था बहुत। ठीक है, ठीक है। ओके, वाटर एट अ हाइट भी समझा दिया मैंने तुम्हें। एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके जल्दी से हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, हम लोग के पास बहुत कम टाइम बच गया है। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला होता है, पता है ना?